توشہ خانہ ریفرنس کیس میں پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید و مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں کی۔ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کو 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا، جبکہ دونوں مجرموں پر جرم ثابت ہونے پر 78 کروڑ 70 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین نے 2018 سے 2022 کے دوران اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں بیرونی ممالک کے سربراہان سے ملنے والے قیمتی تحائف انتہائی ارزاں نرخوں پر حاصل کر کے ان کو $6,35,000 میں فروخت کیا۔ 27 جنوری کو ایران کے صوبہ سیستان میں دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہونے والے 9 پاکستانی شہریوں کی میتیں آج بتائی جا رہی ہیں۔ پاکستانی شہریوں کی نعشیں آج تفتان بارڈر سے ملتان پہنچائی جائیں گی۔ ہماری دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ سرد موسم میں انتخابی سیاست کی گرمی، ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی بھرپور کاوشیں، اپنے اپنے منشور کی تشہیر، نگر نگر کریا کریا جلسے، جلوس اور کارنر میٹنگز، گلیوں محلوں شاہراہوں پر بینرز اور پوسٹرز کی بہار۔ ملک بھر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں۔ پاکستان مسلم لیگ نون آج نارووال میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ انتخابی جلسے میں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف عوام کو اپنے منشور سے آگاہ کریں گے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز بھی جلسے سے خطاب کریں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ کی تحصیل بٹخیلہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تمام تیاریاں مکمل۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کی امریکہ سمیت مغربی ممالک سے اونروا کی احتیاط بحال کرنے کی اپیل۔ فلسطینیوں کو خوراک سمیت دیگر ضروریات زندگی کے لیے امداد کی سخت ضرورت ہے۔ فیصلے پر نظر ثانی کر کے امداد جاری کی جائے گی۔ اینٹونیو گوتریس۔ غزہ کے لیے انسانی امداد کی بندش کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، سربراہ اونروا۔ جاری مقابلے اور ماورائے عدالت قتل، بھارتی فوج کی پہچان۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے سی آئی ڈی کشمیر کا جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کو لکھا جانے والا مراسلہ بے نقاب کر دیا۔ مراسلے میں 3 راجپوت کے حاجی پیر سیکٹر، 12 جاٹ کے اڑی سیکٹر اور لیفٹیننٹ کرنل اکشنت کے ضلع کپواڑہ میں جاری آپریشن کا ذکر ہے۔ بھارت 1989 سے اب تک 7,000 سے زیادہ کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کر چکا ہے۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ بندش میں کشمیر سر فہرست۔ مودی حکومت نے انٹرنیٹ کی بندش کو کشمیریوں کے خلاف نیا ہتھیار بنا لیا۔ 2018 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں 418 مرتبہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز معطل کی جا چکی ہیں۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے بعد مقبوضہ کشمیر میں 1.5 سال تک انٹرنیٹ سروسز معطل رہیں۔ عوام کی مچھ میں دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت، سیکورٹی فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عوام۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ روز مچھ اور بولان میں دہشت گردوں کے حملوں کو پسپا کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ایک اور سنگ میل عبور۔ پنجاب میں اب آن لائن اسلحہ لائسنس ملے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب اور نادرا کے درمیان دی پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا معاہدہ طے پا گیا۔ محسن نقوی نے پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری۔ 21 سے 28 جنوری کے دوران 1 ارب 81 کروڑ روپے وصول، 176 ملزمان گرفتار۔
1 सितंबर से जारी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में अब तक 70 अरब से ज्यादा रुपए वसूल और 43,000 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के ऑफिसर्स और जवानों की शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। FC बलूचिस्तान के अफसरान और जवानों ने शहदा के वरसा के हमरा शहीदों के मज़ारात पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। बाद अज़ां FC के अफसरान और जवान शहदा के घर गए और वरसा से मुलाकात की। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए पाक फौज की काविश। जामिया पेशावर में 2 रोज़ा अमन और सकाफती मेले का इनेकाद। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस जम अज़रा के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। फेस्टिवल में शरीक तलबा ने अमन मेले के इनेकाद को सराहा। वादी तिरा की कुदरती खूबसूरती और दिलफरेब नज़ारे पूरी दुनिया में मशहूर। तवील खुश्क साली के बाद जिला खैबर की वादी तिरा में साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह वादी का रुख करने लगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। मरीज, सवात, कालाम, मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। जनूबी अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। पाकिस्तान की आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान के उबैद शाह की 3 विकेटें। अहमद हसन ने नाकाबिल शिकस्त 57 रन बनाए। और कतर में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। जनूबी कोरिया और उज्बेकिस्तान ने एशियन फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लास्ट 16 में जनूबी कोरिया ने सऊदी अरब के खिलाफ 4-2 से कामयाबी समेटी। उज्बेकिस्तान ने थाईलैंड को 2-1 से हरा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और पेश खिदमत है खबरों की तफसील। तोशाखाना रेफरेंस केस में PTI के साबिक चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में की। दोनों मुलजिमान को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दिया गया है, जबकि दोनों मुजरिमों पर जुर्म साबित होने पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। एहतसाब अदालत की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया गया। नैब की जानिब से 2023 में PTI के साबिक चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस के मुताबिक PTI के साबिक चेयरमैन ने 2018 से 2022 के दौरान अपने वजारत उज़्मा के दौर में बैरूनी ममालिक के सरबराहान से मिलने वाले कीमती तोहफ़ इंतहाई अर्जा नरखों पर हासिल करके उनको $6,35,000 में फ़रोख्त किया। साबिक चेयरमैन PTI को सऊदी अरब से मिलने वाली एक कीमती घड़ी भी शामिल है। रेफरेंस के मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क से मिलने वाले 108 तोहफ़ में से 58 तोहफ़ वापस भी नहीं किए। रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को एक दोस्त मुल्क के वली अहद की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत के इंतहाई कीमती ग्राफ ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया गया, जो उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया। दोनों मुजरमान ने इन तमाम कीमती तोहफ़ का जाली तखमीना लगवा कर बाद में महंगे दामों फरोख्त कर दिया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जारद चकज़ई ने तोशाखाना रेफरेंस केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आज तोशाखाना केस के फैसले ने साबित कर दिया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने वाले कानून से नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार कर चुका है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि 27 जनवरी को ईरान के सूबा सीस्तान में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वाले 9 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें आज वतन लाई जा रही हैं। 9 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें आज तफ्तान बॉर्डर से मुल्तान पहुँचाई जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि हमारी दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। आम इंतखाबात के करीब आते ही मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। तमाम शहरों और देहात में सियासी रहनुमा और कारकुन जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन जलसों से खिताब कर रहे हैं। सर्द मौसम के बावजूद इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। गली महल्लों और अहम शाहराहों पर बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए हैं, जिन पर उम्मीदवारों के नाम, इंतखाबी निशान और तस्वीर मौजूद हैं। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज जिला नारोवाल में बड़ा पावर शो करेगी। इंतखाबी जलसे से कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज आज कौमी असम्बली के हल्का N 132 का दौरा करेंगे। हल्के में मकामी क़यादत की जानिब से रैली निकालने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुकामी रहनुमा मलिक अहमद खान रैली की क़यादत करेंगे। हमजा शहबाज दिन 2 बजे रैली के आखिरी मकाम कोट राधा किशन मकामी कारकुनान से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड की तहसील बटखेला में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ANP के रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलौर के सियासी करियर, उनकी कामयाबियों और नाकामियों पर एक नज़र डालते हैं। हाजी गुलाम अहमद बिलौर ने कब कब इंतखाबात में हिस्सा लिया, कितनी बार फाते रहे, कितनी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। वकार हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। बुजुर्ग सियासतदान हाजी गुलाम अहमद बिलौर ने 1965 में पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जनाह की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। हाजी गुलाम अहमद बिलौर ने सियासी सफर का आगाज 1970 की दहाई में किया और अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 1988 के आम इंतखाबात में हल्का N1 पेशावर से इलेक्शन में हाजी गुलाम अहमद बिलौर अपने मद्दे मुकाबिल आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से हार गए। तहम गुलाम अहमद बिलौर ज़मीनी इंतखाबात जीत कर पहली दफा मेंबर कौमी असम्बली बने। 1990 के इंतखाबात में हाजी गुलाम अहमद बिलौर 51,233 वोट लेकर मर्द मैदान ठहरे। उनके मद्दे मुकाबिल साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी, जिन्होंने 38,951 वोट हासिल किए। इसी तरह 1993 के आम इंतखाबात में गुलाम अहमद बिलौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने 35,755 वोट हासिल किए, लेकिन मद्दे मुकाबिल सैयद जफर अली शाह 40,343 वोट लेकर फाते रहे। 1997 के आम इंतखाबात में गुलाम अहमद बिलौर पेशावर से एक बार फिर मर्द मैदान ठहरे, अपने मुखालिफ कमर अब्बास को शिकस्त दी। हाजी गुलाम अहमद बिलौर ने 2008 के आम इंतखाबात में भी मैदान मारा और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अयूब शाह नाकाम हो गए। साल 2013 के आम इंतखाबात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ 90,500 वोट लेकर हल्का पेशावर से कामयाब हुए, जबकि गुलाम अहमद बिलौर को 24,468 वोट लेकर शिकस्त हुई। तमाम एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात में गुलाम अहमद बिलौर जीत गए। 2018 के आम इंतखाबात में भी हाजी गुलाम अहमद बिलौर 42,526 वोट लेकर नाकाम रहे, जबकि उनके मुखालिफ शौकत अली 87,975 वोट लेकर कामयाब हुए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने PTI के इंसदादी करप्शन के दावों का पोल खोल दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन पर स्पेशल इंडेक्स CPI हर साल करप्शन के बारे में मुख्तलिफ ममालिक की दर्जाबंदी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत हालिया अदवार की करप्ट तरीन हुकूमत थी। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंसदाद करप्शन के वादों के बावजूद उनकी हुकूमत ने इस्लाहात नाफिज नहीं की। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन इतनी बड़ी कि पाकिस्तान CPI में 117 से 140 नंबर पर नीचे चला गया। 2023 में हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 133 पर आकर बेहतर हुई। अदम निफाज और इदाराजाती सलाहियतों के फुकदान की वजह से PTI दौर हुकूमत में इंसदाद करप्शन में पेशरफ्त न हो सकी। रिपोर्ट PTI के बदउनवानी के खात्मे के दावों के खिलाफ एक वाज़ेह चार्जशीट है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ ख़बरें लिए मैं हूँ आपके साथ हुमा मलिक। इजरायली फोर्सेस की जानिब से गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। खान यूनिस समेत जनूबी गज़ा में सहूनी फोर्सेस ने मज़ालिम की इंतहा कर दी है। कई रोज़ से इलाके में मुसलसल बमबारी जारी है। काबिज़ फोर्सेस ने हस्पतालों और रिहायशी इलाकों का मुहासरा कर रखा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक बमबारी के बायस खान यूनिस समेत जनूबी इलाकों में इमदाद तकसीम करने से भी कासिर हैं। इदारे के मुताबिक चेक पोस्टों पर सख्त निगरानी की वजह से खुराक और अद्वियात फराहम नहीं की जा सकती। नसीर अस्पताल में अद्वियात और वहां दाखिल मरीजों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। यहाँ आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के एहतियात बंद करने के फैसले पर नज़रसानी की अपील करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा को एहतियात देने वाले 35 ममालिक के सफ़ीरों से बंद कमरे इजलास में दरख्वास्त की कि फ़लस्तीनियों को खुराक समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इमदाद की सख्त ज़रूरत है, इसलिए फ़ौरी तौर पर उनकी फ़ौरी मदद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि एंटोनियो गुतेरेस ने एहतियात देने वाले ममालिक से अपील की है कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। उन्होंने इमदाद मुअत्तल न करने पर नॉर्वे और स्पेन जैसे ममालिक की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि एहतियात देने वाले ममालिक और तंजीमों की जानिब से फंडिंग अचानक बंद हो जाने से गज़ा में शदीद इंसानी बहरान पैदा होगा। फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थिस ने खबरदार कर दिया है कि गज़ा के लिए इंसानी इमदाद की बंदिश के तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के इदारे अनरवा की माली इमदाद बंद होने से गज़ा में इमदादी निज़ाम तबाह हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेशतर मगरबी ममालिक के इस ऐलान के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और ख़ित्ते पर ख़तरनाक और दूररस नताइज मुरतब होंगे। अनरवा तर्जुमान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया है कि अगर इदारे को फ़ंड्स की फराहमी रुकी रही तो फरवरी के बाद गज़ा के बेघर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ और रिलीफ का काम जारी नहीं रखा जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब की सदारत की। तकरीब के जरिए सनद के नुमाया रहनुमाओं, माहिरीन और हुकूमती स्टेक होल्डर्स को एक छत तले जमा किया गया। मुल्क और बैनुल अक़वामी शुरका ने पाकिस्तान में सनती चैलेंजेस से मुतल्लिक आगाही दी, जबकि पेट्रोलियम के शोबे में ताज़ा तरीन रुझानात और पॉलिसी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान में सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाकों मच और कोलपुर में दहशतगर्द हमलों को नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक 29 और 30 जनवरी के दरमियानी रात दहशतगर्दों ने मच और कोलपुर के कॉम्प्लेक्सेस पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 खुदकुश हमला आवरों समेत 9 दहशतगर्द वास्ते जहन्नम कर दिए गए, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 2 मासूम शहरों ने मादरे वतन पर अपनी जान निछावर की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई इस आज़म का इजहार करती है कि दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म किया जाएगा। कोयटा के अवाम ने मच में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से लड़ते हुए मच और बुलान में दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मच में मासूमों को कत्ल और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमती फैसले के पेश नज़र मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात नजर आने लगे। 21 से 28 जनवरी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 1.81 बिलियन रुपए वसूल और 176 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान से 0.942 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। पेशावर और नए जमशुदा अजला से 0.328 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं, जबकि पेशावर से भी 27 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हैदराबाद और सक्खर से भी मजमूई तौर पर 0.45 बिलियन रुपए वसूल किए गए और 70 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुतल्लिका हुकूमती इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कुन्नू वर्ल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। कंट्रोल्ड
انہوں نے بابو صابو ٹول پلازا کے کشادہ کرنے کے پروجیکٹ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے نیازی چوک سے سگیاں تک پیکیج 1 اور سگیاں سے بابو صابو تک پیکیج 2 کے علاوہ زیر تعمیر پلوں پر کام کی رفتار کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے اور اطراف میں تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اسلحہ لائسنس کے اجرا میں کرپشن کا مستقل خاتمہ، آن لائن اسلحہ لائسنس ملیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب اور نادرا کے درمیان دا پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا معاہدہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دا پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم کے تحت پنجاب بھر میں اسلحہ لائسنس کی تجدید اور ترمیم کرائی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے خودکار سسٹم کے تحت اسلحہ لائسنس کے اجرا کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں کہ جعلی مقابلے اور ماورائے عدالت قتل ہندوستان فوج کی پہچان بن چکے ہیں۔ بھارتی فوج مودی سرکار کی خوشامد کے چکر میں اپنے ہی ہتھیار برآمد کر کے ملبہ آزادی پسندوں پر ڈالنے لگی۔ بھارتی فوجی افسران ترقی، تمغہ اور اچھی رپورٹ کے لیے جعلی آپریشن اور انکاؤنٹرز کرنے لگے۔ منصوبے کے مطابق مجبور کشمیریوں کو پیسے کا لالچ دے کر سمگلنگ پر آمادہ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو جعلی آپریشن میں مار دیا جاتا ہے۔ بعض اسے آپریشن کا رنگ دے کر ذاتی تشہیر کی جاتی ہے اور الزام پاکستان کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے CID کشمیر کا جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کو لکھا جانے والا مراسلہ بے نقاب کیا تھا۔ مراسلے میں 3 راجپوت کے حاجی پیر سیکٹر، 12 جاٹ کے اڑی سیکٹر اور لیفٹیننٹ کرنل اکشنت کے ضلع کپواڑہ میں جاری آپریشن کا ذکر ہے۔ بھارت 1989 سے اب تک 7,000 سے زیادہ کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کر چکا ہے۔ 31 مارچ 1993 کو بھارتی فورسز نے ڈاکٹر عبدالاحد گورو کو شہید کر دیا تھا۔ 18 جولائی 2022 کو 3 کشمیریوں کے ماورائے عدالت ملک کے اوپر مسلط کیے گئے پاکستان کا RTS بٹھا کر ان کے جو اعمال نامہ تھا وہ ہم نے پہلے دن سے ہی شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے الیکشن بھی چوری کیا، انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ بھی چوری کیا، انہوں نے سرکاری خزانے، قومی خزانے پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ جو طاقت تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طاقت سے وہ دوسروں کا منہ بھی بند کر لیں گے، اس وقت ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا۔ سب کے سب فرنٹ روز والے، کسی کو سزائے موت ہو گئی، کسی کے اوپر ہیروئن ڈال دی، کسی کے اوپر عمر قید کر دی، کسی کو اڈیالہ جیل بند کر دیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو بند کر دیا، میاں نواز شریف جیل میں، ایک پورا فساد کریٹ کیا گیا۔ اور 11-12 سال پوری سیاست جو تھی اس کا جو محور تھا وہ دوسروں کو چور کہنے پہ گزار دیا۔ چور 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 کا اتنا شور مچایا اور اس تاثر کو اپنے سیاسی بیانیے میں بدلنے کی کوشش کی گئی، اور آج جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل چور اور جھوٹے کون تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، جو کہ پاکستان کے اندر ہر شعبے کو اینالائز کرتی ہے، اس کے CPI کو اینالائز کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک انڈیکیٹر دیتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان 180 دنیا کے ممالک میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے کس لیول کے اوپر ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ ہر ملک کے اندر کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو ایویلیویٹ کرتا ہے۔ اور اس کل کی رپورٹ جو آئی ہے اس کو جانے سے پہلے میں پاکستان کی عوام کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر یہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ 2013 سے 2018 کے درمیان میں بھی آئی تھی، یہ جو چارٹ میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے یہ 13 پہ پرسیپشن انڈیکس پاکستان کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہی کے مطابق 140 کے اوپر تھا، اور 140 سے جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو یہ پرسیپشن انڈیکس کرپشن انڈیکس 140 سے 117 پر پہنچ گیا، اور 140 سے 117 پر یہ اس وقت پر پہنچا جہاں وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب جو تھے وہ پاکستان کا ہسٹورک ڈیولپمنٹ سرج تھا۔ 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بجلی کے منصوبے لگائے گئے،
सी पैक के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर सड़कों के मंसूबे, बिजली के मंसूबे, इसी दौरान LNG की प्रोक्योरमेंट होकर मुल्क में गैस की कमी को ख़त्म किया गया, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया, मोटरवेज बनी, सड़कों का जाल बना, मंसूबे बने, तरक्याती मंसूबे बने, हस्पताल बने, स्कूल बने, सड़कें बनी, जो मैंने आपको पहले बिजली के मंसूबे बने, गैस की प्रोक्योरमेंट्स हुई, LNG की प्रोक्योरमेंट हुई। और इसके बावजूद जो गवर्नेंस थी, क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था, ऊपर बैठा शख्स जो गवर्नेंस थी, जो करप्शन थी, उसको कंट्रोल करता था। और उसने पूरे निज़ाम के अंदर, ये जो परसेप्शन इंडेक्स होती है ना, ये निज़ाम की करप्शन को इंडिकेट करती है। यही ब्यूरोक्रेट्स थे, यही सरकारी निज़ाम था। इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट्स हुई, नेशनल प्रोक्योरमेंट्स हुई, मंसूबे लगे। और एक तरफ पंजाब में शहबाज शरीफ CM पंजाब था, इसी तरह बिजली के मंसूबे लगे, गैस के मंसूबे लगे, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स लगे, दानिश स्कूल जैसे स्कूल बने, सड़कें बनी, मार्केट टू जो रोड है वो बने, सड़कों का जाल बना, बिजली के मंसूबे लगे, गैस के मंसूबे लगे, सोलर पार्क लगा। लेकिन ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था, सच्चा था। एक एक पैसा पाकिस्तान की आवाम का अमानत समझकर इस्तेमाल किया। उसके बाद की कहानी इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2018 के बाद 2022 में आई, के दरमियान आई। और ये भी बताती चलूँ, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सनत जो है ना, कि ये बहुत अच्छी अदारा है, ये बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। यही मौसूफ देते थे जो दूसरों को चोर कहते थे, वो वीडियोस आपने देखी होंगी। 18 के बाद 22 की कहानी, ये चार्ट ज़रूर दिखाएं, इसको करीब करके दिखाएं, या स्क्रीन नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि ये 18 से 22 की कहानी, जब ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वही निज़ाम जो 13 से 18 तक परसेप्शन इंडेक्स 140 से 117 पर चली जाती है, इस डेवलपमेंट के बावजूद, और वो 18 से 22 में 117 से वापस 140 के ऊपर चला जाता है परसेप्शन इंडेक्स, जो 2013 के अंदर हमें पाकिस्तान मिला था। हम साफ करते हैं, करप्शन से पाक करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, महंगाई कम करते हैं, लोड शेडिंग कम करते हैं, तरक्की लाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन्स बनाते हैं, मेट्रोज बनाते हैं। ये दोबारा से गंद डालते हैं, करप्शन का गंद डाला, मुल्क को महंगा किया, बेरोजगार किया, मंसूबे बंद हो गए, एक ईंट नहीं लगी, कोई स्कूल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बनी, कोई मोटरवे दिखा दें, कोई अस्पताल दिखा दें, कोई प्रोजेक्ट दिखा दें जो 18 से 22 तक इन्होंने ईंट लगाई हो। लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील हुआ। जो सीपेक था, आपको याद होगा, पंजाब में एक गुलाम बिठाया हुआ था जिसका नाम बुजदार था, जो चीफ मिनिस्टर तो था, लेकिन इशारों के ऊपर नौकरियां, DC और AC की बोलियां, NOC, रेडी वाले का भी NOC के ऊपर चाहे 1000 रुपया मिले, चाहे 1 अरब रुपया मिले, कोई तफरीक नहीं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की परसेप्शन इंडेक्स जो थी वो 140 पे पहुंच गई, 117 पे। 25,000 अरब का कर्ज लिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वहाँ 900 अरब का कर्ज लिया। BRT में खा गए, बिलियन ट्री सुनामी में खा गए, वो कोविड फंड का जवाब नहीं दे सके। जो मंसूबा उठाओ करप्शन से अटा हुआ था, किधर गया वो 900 बिलियन, कहाँ गया वो 25,000 अरब। इसलिए ये इंडेक्स, और दूसरी तरफ चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। और इस चोरी की वजह से जो कर्जा लिया, इस चोरी की वजह से जो चोरियां और डाके डाले, आवाम की रोटी महंगी हुई। वो पैसा सस्ती रोटी में जाना था, सस्ती बिजली में जाना था, सस्ती गैस में जाना था। उसी प्रोजेक्ट से, जो ये प्रोजेक्ट्स अगर लगाते, जो कर्जे ले रहे थे,
تو عوام کی اور نوجوان کی روزگار میں بدلنا تھا. اور اب کہا جی شہباز شریف ڈیلی میل کو بلایا گیا. ان کو اتنا خوف خدا نہیں تھا ڈیلی میل کو بلا کر, اس صحافی ڈیوڈ روز کو بلا کر, کہ ڈفڈ میں شہباز شریف صاحب پیسہ کھا گئے ایجوکیشن کا. یو کے کی ہائی کمیشن نے, ڈفڈ نے سنڈے کے دن کہا کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ منصوبے کبھی لگے نہیں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ میں لگے. نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے کہا کہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ کوئی کک بیک ہوا, نہ کوئی کمیشن کھائی, کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا. نیشنل کرائم ایجنسی نے بولا. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں 56 کمپنیاں, صاف پانی, گندا نالا, پتہ نہیں کیا کیا الزام نہیں لگایا ان لوگوں نے, ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف کے اوپر الزام لگایا کرپشن کا, پینما کا, بیٹے کی تنخواہ لینے پہ فارغ کیا. مطلب کہ پوری اداروں کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن کے یہ نواز شریف کو کرپشن کے اوپر سزا نہیں دے سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. شہباز شریف کو 2 دفعہ 3 دفعہ اریسٹ کیا, جیلوں کے اندر اریسٹ کیا کہ اب پتہ نہیں صاف پانی پروو ہونے لگا ہے, اب پتہ نہیں 56 کپیاں, گندا نالا آ گیا ہے, ابھی پتہ نہیں ڈیوڈ روز صاحب آ گئے ہیں, ڈیلی میل آ گئی ہے. اور چور 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 کہتے کہتے اپنی پوری سیاست اس پہ کی, جھوٹے بیانیے بنائے. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں چور ٹولے کو, یہ پورا مافیا تھا, یہ منظم طریقے سے کرپشن کرتا تھا. اسی نظام کو انہوں نے آرگنائز طریقے سے استعمال کر کے چوریاں اور کرپشن کی. سب کو ساتھ میں لاتے تھے. یہ توشہ خانہ میں کیا ہوا ہے کہ جو اسیسمنٹ تھی سرکاری افسروں کو ساتھ ملا کر انڈر ویلیو کرا لیا. مس یوز آف اتھارٹی, الزام دوسروں پر لگاتے رہے. اور کل جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اس گراف کو دوبارہ دکھائیے. جب 2022 کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, 16 ماہ کی حکومت شہباز شریف صاحب کی, 16 ماہ کی حکومت, جس میں دوبارہ رکے ہوئے پروجیکٹس چلے, دوبارہ وہی سڑکوں کے منصوبے شروع ہوئے, بجلی کے منصوبے شروع ہوئے, آئل کی پروکیورمنٹ ہوئی. انہی دور میں فلڈز کی جتنی بڑی انٹرنیشنل ڈسپرسمنٹس ہوئی, جب فلڈز آئے اس کی ٹرانزیکشن ہوئی, BISP کی ہسٹورک ڈسپرسمنٹس ہوئیں, 13 جماعتوں کی PDM, اور ان میں سے وہ جماعتیں بھی جو کہ ان کے ساتھ تھیں, لیکن اوپر بندہ جو تھا اس نے کرپشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اس نے گورننس ٹھیک کی ہوئی تھی. اوپر بیٹھا شخص پاکستان کی عوام کے پیسے کو امانت سمجھ کر استعمال کر رہا تھا. تو یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جب 22 سے کے بعد PDM کی حکومت تھی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے, اس وقت جو پرسیپشن انڈیکس ہے وہ 140 سے 133 پر چلا گیا. 16 ماہ کی حکومت. میں سلام پیش کرتی ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اتنے الزام لگے, اتنے الزام لگے, ایک طوفان تہمت کا, بہتان کا. کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ثابت یہ ہوتی ہے کہ جب نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پاکستان کی عوام کی امانت آتی ہے, تو اس وقت پاکستان میں کرپشن کی پرسیپشن اور چوری کم ہوتی ہے, اور اس نظام کو دوبارہ سے ہم صاف کرتے ہیں جو یہ گند پھیلا کر جاتے ہیں. جب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے, یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ وہ گراف کس طرح کرپشن کا نیچے جاتا ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ اوپر ہوتا ہے, اور پھر صرف 16 ماہ میں 140 سے 133 ہو جاتا ہے. منصوبے دوبارہ چلتے ہیں, دوبارہ بنتے ہیں. یہ مافیا 4 سال, چینی مافیا, آٹا مافیا, گیس مافیا, آئل مافیا, گوگی, پنکی, بزدار, عمران خان. یہ عمران خان تو بڑا صاف ہے, باقی سارے چور ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا شخص اگر سچا ہو اور چوری کو روکنے کی نیت رکھتا ہو, کرپشن نہ کرنے دیتا ہو, تو پھر پرسیپشن انڈیکس بھی بہتر ہوتے ہیں. تب
करप्शन भी कम होती है, चोरी भी कम होती है, लेकिन जिस वक्त ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन हो रही होती है, निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता है, निज़ाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, निज़ाम को मैनिपुलेट किया जाता है, उस वक्त मुल्क में चोर बाजारी होती है। तोशा खाना लूट गए, और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं, क्योंकि चोरी जो की होती है, जिन्होंने चोरी नहीं की होती वो अपनी तीन तीन नस्लों का जवाब देते हैं, अपने मरहूम वालिद का जवाब देते हैं, खड़े होके सीना तान के सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा है, मेरा जवाब लो। और ये शख्स जब अपनी चोरी का, अपनी करप्शन का जवाब मांगो तो शोहदा की यादगारों पर हमले करते हैं, बसों पर हमले करते हैं, स्कूलों पर हमले करते हैं, मेट्रो ट्रेन्स तोड़ते हैं, रियासत के ऊपर हमले करते हैं, मस्जिदें जलाते हैं, पुलिस वालों के सर फाड़ते हैं। ओए ज़ेबा जज, मुझसे सवाल करती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उठा उठा के फाइलें फेंकते हैं अदालतों के कमरों में, क्योंकि चोर होते हैं। चोर हमेशा शोर मचाता है। आपका मतलब था कि आप 25,000 अरब खा जाएंगे, 900 अरब खा जाएंगे KPK में, पंजाब में जो चोर बाजारी का आपने बाजार गरम किया हुआ था, तो ये सब कुछ आपको माफ़ कर दिया जाएगा आपके शोर में। और ये सनद है कि इंटरनेशनल अदारे जब पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर दिखाते हैं तो जो तासुर है कि ये मुल्क और फिर मुल्क की तज़हीक की, ये साइफ़र क्यों किया था? क्योंकि पता था ये चोरियां पकड़ी जानी हैं। साइफ़र को अपना सियासी बयानिया बना लिया, आज उसको मजलूमियत का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के कौमी राज से खेलना है, मुल्क के 25,000 अरब खा जाने हैं, तोशा खाना खा जाना है, मुल्क का 900 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा का हड़प कर जाना है, कोविड फंड खा जाना है, कोविड फंड, बिलियन ट्री सुनामी के पैसे खा जाने हैं, एहतसाब कमीशन को ताला लग जाए, और दूसरों को चोर कहते हो। कहते कहते थकते नहीं थे। बच्चों को बदतमीज़ी सिखाई कि दूसरों को चोर कहो। जानबूझकर इस्तेमाल किया गया, जानबूझकर ये सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश करके ये मुल्क को लूटा गया, ऊपर से नीचे तक लूटा गया। पंजाब को लूटा गया, वो पंजाब जिसमें शहबाज शरीफ ने एक एक रुपया अमानत समझकर इस्तेमाल किया, अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए। यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही निज़ाम था, लेकिन ऊपर चोर नहीं था, ऊपर एक सच्चा आदमी बैठा था जिसके खिलाफ हर कोर्ट को इस्तेमाल किया गया। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। नवाज शरीफ को चोर कहते थे तुम, और खुद ब्लैक लॉ डिक्शनरी, आज वो जज जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया होगा, आज शर्म आनी चाहिए। किसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया और किसको सिसिलियन माफिया और गॉड फादर का? ये है सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स का सर्टिफिकेट जो आपके लाडले और आपके सादिक और अमीन को दिया जा रहा है। आप इस्तीफे देकर, वो याद है सुप्रीम कोर्ट में आते थे कि इजाजुल एहसन साहब ने संदूक मंगा लिए सबूतों के नवाज शरीफ के खिलाफ, वो GIT बन गई, उसका मॉनिटरिंग जज बन गया, वो GIT हीरो को तलाशी गई। ये है उनके मुंह पर तमाचा, ये चपेड़ है उन लोगों के ऊपर जो ये पूरे का पूरा ग्रोह जिसने जो साजिश करता है, जो मुल्क को इस हाल पर पहुंचाता है कि आज आवाम की रोटी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, मुल्क में बिजली नहीं, मुल्क में गैस नहीं, और फिर हमारे हवाले कर देते हैं कि अब इसको ठीक करो। अब फिर कैसे ठीक करोगे? हमसे सवाल करते हैं, फिर सवाल करते हैं हम कैसे ठीक करेंगे? हम तो ठीक करके गए थे, हम तो जब आते हैं ठीक करके जाते हैं, महंगाई कम करके जाते हैं, बिजली बनाकर जाते हैं, गैस देकर जाते हैं, तरक्की देकर जाते हैं, मंसूबे देकर जाते हैं, CPEC जैसे प्रोजेक्ट देकर जाते हैं। हमने तो कोई पिंकी गोगी इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं दिया था, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमने तो CPEC दिया था पाकिस्तान को। हमने तो AC और DC की बोलियां नहीं लगाई थी, मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ फैसले करता था। तमाशा बना दिया मुल्क को, और फिर सवाल करते हैं हमसे कि इसको अब ये दे दिया, इसको उसी हाल पर छोड़ के जा रहे हैं। दहशतगर्दी वापस, लोड शेडिंग वापस, गैस का खात्मा, महंगाई, बेरोजगारी, आप कहते हैं इसको ठीक करो। करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
नवाज शरीफ की क़यादत में करेंगे, दोबारा से महंगाई कम करेंगे, दोबारा से नौजवान को रोज़गार देंगे, दोबारा से सीपेक के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, दोबारा से बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंशाल्लाह दोबारा से नौजवान को नौकरी मिलेगी, दोबारा से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे। सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को 8 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मुल्क में महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। अगर मुल्क में मंसूबे तरक्की खुशहाली वापस लाना चाहते हैं, अगर नौजवान के हाथ में पेट्रोल बम नहीं बल्कि लैपटॉप, आईटी स्किल और ई स्टार्टअप्स देना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। और आज फैसला पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। इसको जितनी ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़िम्मेदारी से और उतनी ही तेज़ी से इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा, दोबारा महंगाई में कमी आएगी, बिजली और गैस के बिल सस्ते होंगे और हमने अपने मंशूर में वो तमाम तरीका बताया है जिससे हम इंशाअल्लाह दोबारा से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस लाएंगे। ये बताइएगा कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और हमने देखा है कि 2018 का इलेक्शन हो या 2024 का इलेक्शन स्क्रिप्ट सेम लग रहा है। उसी तरह से नवाज शरीफ साहब को सजाएं, उसी तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न पे अब इमरान खान साहब को सजाएं दी जा रही हैं। आप नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई उनका तो हशर हमने देख लिया कि सब कुछ खत्म हो गया। इन सजाओं के मुतालिक क्या ये सस्टेन कर सकेंगी या अगले इलेक्शन में कोई और इस तरह से आ रहा होगा? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि जब आप लोग जिन्होंने ये बड़े करीब से चीज़ें देखी हैं वो इन दोनों चीज़ों का मुआवजा करते हैं। मैंने अभी बड़े तफसील से आपको बताया कि नवाज शरीफ पे पैनामा का करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनको इस्तेमाल करते हुए बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाला गया। नैब ने अपने फैसले में लिखा कोई करप्शन नहीं हुई, कोई किकबैक नहीं थी। और एक तरफ भैया आप तोशा खाना है ना, उसका एक प्रोसेस है। आपको तहाइफ मिले, आपने सबमिट कराने थे, आप सबमिट करा दें, तोशा खाना वैल्यू करेगा, आप वो पे करें और आप ले लें तोहफा। लेकिन आप रिपोर्ट करें और जमा ना कराएं, खुद वैल्यू कराएं और उसके बाद वो पैसे दे दें। उन पैसे जिससे उनकी पेमेंट हो रही है उसकी ट्रेल भी ना दें और उसके बाद आप 9 में कर दें साइफ़र, ये कागज़ लहरा लें, ये कागज़ बंद कागज़ लहरा दें कि ये साइफ़र है। और कौमी जो राज हैं, कौमी जो चीज़ें हैं उनको आप अपनी सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल करें और कहें खेलना है, इसके साथ खेलना है, मिनट्स बदल दो, झूठ बोलो, अमेरिका ने ख़त्म की मेरी हुकूमत, फिर क्या कहा, मुझे तो नाम इतने लेते हैं। नहीं वो तो एंड पे आया ना, वो तो नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म की, डोनाल्ड लू साहब आ गए, फिर उनको वो एंड में जी मोहसिन नकवी साहब, बाजवा साहब आ गए, बाजवा साहब को कहा जी इन्होंने ख़त्म कर दी है, फिर वो मोहसिन नकवी साहब पे आ गई। ये तमाशा है, ये मजाक है, ये कोई खेल है? और फिर आप ये मुआवजा करें कि जी वो तब भी ये हो रहा था, आज भी ये हो रहा है। ये तो फैसला अदालतों ने करना है और पाकिस्तान की आवाम ने करना है। आप पहले वेलकम आपको इस्लामाबाद से आप आए। जी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मियाँ साहब ने कल एक जलसा किया भावलनगर में, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कौमी सलामती से खेला, उसकी साइफर की मुनाज़र में उन्होंने, क्या कोई और चीज़ें भी ऐसी हुई आपके नॉलेज में आई हैं जब पीडीएम की हुकूमत आई थी? देखिए ये 9th में क्या है, 9th में क्या था, 9th में आपने लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को इस्तेमाल करके कि सिर्फ अपना जवाब नहीं देना, गिरफ्तार नहीं होना, गिरफ्तार नहीं होना तो ज़मान पार्क में पेट्रोल बम की फैक्ट्री लगा लो, वो चढ़ दौड़ो अदालतों के ऊपर, शीशे तोड़ दो, उनके ऊपर हमला आवर हो जाओ। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उस वक्त गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक के जो लोग फैसिलिटेटर्स और सहूलतकार बैठे थे ना, ये उनकी वजह से हो रहा था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका ये कहना है कि अपोजिशन को पीटीआई ने जेलों में कैद रखा। आज पीटीआई अपने किए पर आगे बढ़ते आपको बताया कि जिला रहीम यार खान में कौमी असम्बली के हल्का N 170 खानपुर में 15 उम्मीदवार आमने सामने हैं। हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। हल्के के वोटर्स ने उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, जानते हैं अशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। हल्का
हल्का है 170 हिजर खान जो कि 9,40,000 खानपुर की शहरी और देही आबादी पर मुश्तमिल है। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4,90,000 है, जिनमें मर्द वोटर 2,66,747, खवातीन वोटर्स 2,22,945, जिनके लिए 315 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हल्का एन 170 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख फयाजुद्दीन, पीपल्स पार्टी के हामिद सईद काज़मी और आजाद उम्मीदवार मियां गौस समेत 16 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारों की जानब से भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। NA 170 में जो सबसे यानी कि बुनियादी मसले हैं उनमें सीवरेज का जो आता है, एक कि सीवरेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, दूसरा यहाँ पे बिजली का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। यहाँ के बुनियादी मसाइल सीवरेज, पीने का पानी और ज़िला बहाली जो आज तक मुमकिन नहीं हो सका। 2018 के इंतखाबात में इस नशिस्त से शेख फयाजुद्दीन ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 78,536 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। हल्के से वोटर्स की जानब से गैस और बिजली की लोड शेडिंग और सीवरेज के पानी को सबसे बड़ा मसला करार दिया है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम खान। रुख करते हैं ओकाड़ा का, जहां शदीद सर्दी के बावजूद सियासी मैदान गर्म है। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारान की कसीर तादाद हिस्सा ले रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं अकील हैदर। NA 136 में टोटल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार मसूद शफकत, PTI के आज़ाद उम्मीदवार राव हसन सिकंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सजादुल हसन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रियाजुल हक जज समेत दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। लेकिन असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रियाजुल हक जज, पीपल्स पार्टी के चौधरी सजादुल हसन और PTI के हमायती याफ्ता राव हसन सिकंदर के दरमियान है। 2024 में अगर अल्लाह ने करम किया तो इंशाल्लाह ताला ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज पे उसको मुकम्मल करवाएंगे। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल हेल्थ साइंसेज, वेटरनरी एंड एनिमल हेल्थ साइंसेज का मनसूबा है, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला इंजीनियरिंग कॉलेज का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाएंगे इंशाल्लाह। हल्का NA 136 में कुल वोटर्स की तादाद 5,08,896 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,71,055 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,37,841 है, जो अपने हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। एक जानब उम्मीदवारों के बुलंदो बाग दावे तो दूसरी जानब हल्के की अवाम इलाकाई मसाइल से दो चार, जिनमें पीने के साफ पानी और सीवरेज का मसला अहम है। अरसा 5 साल से टंकी बनी हुई है, पैप बिछी हुई है, लाइन लगी हुई है, लेकिन साफ पानी की सहूलत मुयसर नहीं है। इसे साफ पानी या तो रक्शे वालों से लेना पड़ता है या फिर फिल्टर प्लांटों से जाके लेके आना पड़ता है। ओकाड़े ਦੇ बहुत सारे मसाइल ने, जिन्हां चों एक मसला सीवरेज ਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦਾ है कोई नहीं। अब 8 फरवरी को देखना यह है कौन सा उम्मीदवार जीत का सेहरा अपने सर बांधता है, असेंबली में पहुंचकर अपने हल्के के मसाइल हल करवाता है। तो ये 8 फरवरी को ही वोटर्स अपनी हक के राय दही से बताएंगे। हर बार इलेक्शन से पहले उम्मीदवार इलाके के मसाइल हल करवाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि दूसरी जानब वोटर्स अपने इलाके के मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने कैंडिडेट से चुनते हैं। इलाके के मसाइल जो कि तू हैं। कैमरा टीम के हमरा शेख अकील हैदर, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। मलका कौसार मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी, PDMA की हिदायत पर इंतजामिया मुतहर्रिक। मरी में बर्फबारी के पेश नज़र सयाहों के लिए रावलपिंडी इंतजामिया ने खुसूसी हिदायतनामा जारी किया है। मजीद तफसील जानते हैं हसन तारिक पट से। हसन, आगाह कीजिएगा। से जो मलका कौसार मरी है उसके अंदर बर्फ़बारी का जो है वो सिलसिला जारी है। सीज़न की पहली बर्फ़बारी है और इसके पेश नज़र बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो मलका कौसार मरी का रुख कर रहे हैं। माजी के अंदर भी देखा गया है कि जब सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया तो वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए और चंद नाखुशगवार वाक़यात भी जो हैं वो वहाँ पर हो चुके हैं। और इसी चीज़ के पेश नज़र जो रावलपिंडी इंतजामिया है उसने खुसूसी इक़दाम किए हैं और रावलपिंडी के अंदर एक मरकज़ी कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है ताकि मरी की जो सूरत हाल है उसका 24 घंटे जो है वो उसको मॉनिटर किया जा सके। वहाँ पर मुकामी मरी के अंदर एक मुकामी जो है वो कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है उसका 92692200, ताकि सयाह अगर किसी भी किस्म की जो है वो मुश्किल में फंसे तो उस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और इस हवाले से रावलपिंडी इंतजामिया ने सयाहों के लिए खसूसी जो है वो हदायत भी जारी की हैं, जिसके अंदर उनको सख्ती से कहा गया है कि जो ट्रैफिक कवानीन है उसकी पाबंदी करें, डबल लेन की सवारी ना करें, जो गाड़ी लेके जाएँ वो मैकेनिकली फ़िट हो और स्पेशली जो फ्यूल टैंक है उसको फुल करके लेके जाएँ ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी को वो हैंडल कर सकें। इसके अलावा पार्किंग के जो कवानीन हैं उनका सख्ती से जो है वो उनके ऊपर पाबंदी करें ताकि किसी भी किस्म के जो है वो ट्रैफिक के मसाइल ना पैदा हों।
Bismillahirrahmanirrahim. Minister for Federal Education and Professional Training and Pro-Chancellor of Allama Iqbal Open University, Janab Madad Ali Sindhi Sahab, Vice Chancellor Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Nasir Mahmood Sahab, dignitaries, members of the Executive Council, faculty and staff of the university, parents, respected guests and dear graduates, Assalamu alaikum. میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، باعث آپ لوگوں نے عزت دی کہ میں یہاں آ کر آپ سے گفتگو کر سکوں، اور اس وجہ سے زیادہ مجھے یہ شوق ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے ملک کی تقدیر، آپ نے اس ملک کو بنانا ہے، اور سب سے بہتر ہتھیار جو یہ ملک آپ کو دے سکتا ہے وہ ہے علم کا ہتھیار، اور اس کے اندر میں نے ابھی ایک جنرل صاحب کو بھی دیکھا تو مجھے حدیث یاد آئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک علم کی تلاش ہونی چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے خطے کے ایک بہت مشہور بزرگ تھے، ان کے متعلق یہ جب ان کی عمر بڑھنے لگی تو وہ ایک اونچائی پر رہتے تھے، تو جب بیمار رہنے لگے تو ایک دن رات کو ان کا دیا اور شمع اور لالٹین جلتی رہی، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ کہیں یہ جلا کر ان کی یہ رحلت تو نہیں کر گئے، تو لوگوں نے کہا کہ جا کر بھائی دیکھو تو صحیح۔ تو جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ کسی حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ حدیث تو آپ کو پتہ ہے مگر کہنے لگے میں ان کے راویوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اینڈ ویری کلوز ٹو ہز ڈیتھ وہ پھر بھی متلاشی تھے۔ تو بچوں، یہ جو علم آپ کو ملا ہے اس پر یہ تو یوں تو فخر کرو کہ آپ پاکستان کے ان ہونہار لوگوں میں آ گئے جو ایلیٹ ہے اس وقت، اور ایلیٹ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو بہت سارے غم ہیں، اس میں ایک غم یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر 2.62 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں، اور ان میں آپ ایلیٹ ہیں کہ آپ اسکول سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کر لی اور آپ کے ہاتھ میں ملک نے علم دے دیا۔ تو آپ تو میرے ملک کا زیور ہیں، اور یہ جو میں آپ کو صرف ایک اندازہ بتا دوں، یہ فگر آ جانا تو بڑا آسان ہے کہ 2.62 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں۔ اچھا، یہ آپ کی ڈائریکٹ گریجویشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر کیونکہ علم کا معاملہ ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ تکلیف شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان کو اسکولوں میں بھیجا جائے تو اس وقت 50,000 اسکولوں کی ضرورت ہے، اور پاکستان بننے سے آج تک پنجاب کے اندر 55,000 اسکول بنے ہیں صرف، تو لہٰذا ایک بہت بڑی ٹاسک نظر آئی۔ دوسرے، اس وقت یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تعلیم، اور پروونشل سبجیکٹ کے ناطے تقریباً 24 سے 28 یا 30% تک پروونشل بجٹس تعلیم پر جا رہے ہیں، اور میں کل عنقریب کوئی ایسی کیفیت نہیں دیکھ رہا کہ پروونسز اپنا بجٹ اور کاٹ کر کے 50% تعلیم پر خرچ کر دیں، کیونکہ اور بھی پرائرٹیز ہیں، غربت بھی پرائرٹیز ہے، صحت بھی پرائرٹی ہے، لہٰذا ایک اور کمپلیکیشن کہ اس کو کریں گے کیسے۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ایجوکیشن ڈے تھا، اس کے اندر میں نے گفتگو کی کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشنز چاہیے۔ آؤٹ آف دا باکس سلوشنز میں آپ سے بہتر کوئی ہراول دستہ نہیں ہو سکتا جو اس میں ہماری مدد کرے، مگر گورنمنٹ کو بھی کوئی نہ کوئی پلان بنانا پڑے گا کہ آپ سے مدد لی جا سکے اس سلسلے میں۔ تو میں علم کے حوالے سے بچوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر پاکستان کی ایک طاقت بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ جو فگر میں نے آپ کو بتایا اس کو ریجن کے ساتھ کمپیریزن کے اندر بھی آپ ذرا سا سمجھ لیجئے۔ یہ 44% بچے ہمارے اسکولوں کے باہر ہیں، اور ریجن کے اندر جس میں ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جس کے 98% بچے اسکولوں کے اندر نہ ہو، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور یہ مستقبل کا سیٹ بیک ہے، اور ان مستقبل کے اندر ان بچوں کا ہم کیا کریں گے، کیسے لے جائیں گے۔ تو ایک طریقہ تو اس وقت میں مدد علی سندھی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، منسٹر صاحب کا، کہ فیڈرل ایجوکیشن
के इदारे ने एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम भी तय किया है और मेरी कोशिश ये है कि स्कूल बनाना तो बड़ा मुश्किल है, मगर पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा या तकरीबन 3 लाख मसाजिद हैं, हर गली के अंदर मस्जिद है, तो किसी तरह से मस्जिद के स्ट्रक्चर के साथ और आप लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसा काम किया जाए कि इन बच्चों को जल्दी से तालीम देकर सिस्टम में लाया जाए। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपकी एक स्ट्रेंथ है जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और आज का दिन इस स्ट्रेंथ को आपसे बस याद दिला देना। आपको याद है, कोई ख़ास बात मैं नहीं करूँगा, मगर उसको रीइंफोर्स करना चाहता हूँ। वो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान का ख़ानदान। पाकिस्तान का ख़ानदान इस माना कर कि आप सब की तालीम के अंदर आपके माँ बाप का बेइंतहा हिस्सा है। मस्ट रिकग्नाइज दैट, कभी मत भूलिएगा। इस बात का इम्कान है कि जैसे माँ बाप हमारे बूढ़े होते हैं तो निगलेक्ट का शिकार हो सकते हैं, दुनिया के अंदर निगलेक्ट का शिकार हैं, ओल्ड पीपल्स होम्स में जाते हैं। अल्लाह का फजल मेरे मुल्क पर है कि ये अक़दार अभी भी पाकिस्तान में मजबूत हैं और लिहाजा हम उनका ख्याल करते हैं, मगर कहीं ना कहीं डीके हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि क़ानून पास किया जाए कि बच्चे अपने माँ बाप को घरों से ना निकालें। बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा कि इन्होंने आपकी तालीम के अंदर माली मदद भी की होगी, उसके अलावा ये भी जहन में रखो कि जिस चीज़ का ज़िक्र पाकिस्तान में कम है और दुनिया में तो बिल्कुल ही नापैद हो गई है, वो बात वो है तरबियत का, वो है अखलाकियात का, वो है दिल की बात। एक है इल्म व अक़ल और एक है दिल, और दिल के साथ जो वाबस्तगी हमदर्दी और इंसानियत की है वो दुनिया में कम हो गई है, जिसको हिकमत कहते हैं। इल्म और अक़ल, अक़ल तो अल्लाह ताला ने बचपन से आपकी बढ़ाते गए अल्लाह सुब्हानहू ताला, और इल्म ने उसके अंदर एक रैशनलिज्म और मंतिक का इजाफा कर दिया इल्म ने। मगर ये जो इंसानियत है, ये जो मोहब्बतें हैं, इसका पिछले दिनों जब मैं कहीं गुफ्तगू कर रहा था तो वहाँ पर था कि एजुकेशन एंड पीस। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ दुनिया के हालात देखते हुए, इस वजह से मैं समझता हूँ आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दुनिया के अंदर इल्म और अक़ल मिलाकर हमदर्दी और इंसानियत बढ़ी नहीं है, मगर जुल्म बढ़ा है। ये इल्म बदलेगा, वसाइल नहीं बदलते मुल्क को। वो मुमालिक जहां इल्म के जरिए सही फैसले कर लिए गए वो बदल गए। और आपके जहन में सिर्फ याद दहानी कर दूं, सिंगापुर, नो रिसोर्सेज इन द ग्राउंड, नो नेचुरल रिसोर्सेज। दुबई, नो ऑयल इन दुबई, नो ऐसा मुल्क जो करप्शन का शिकार रहा अब इंप्रूव कर रहा है, बेइंतहा तेल उनका है, और वहां पर तरक्की इस माना करके नहीं हो सकी जो होनी चाहिए। तो लिहाजा दुनिया में गिद्ध बैठे हुए हैं जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और जो बैनुल अक़वामी इदारे बन गए उनका काम सिर्फ ये है कि फलाने खित्ते में, अब तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यूनाइटेड नेशंस ने जितनी उम्मीदों के साथ पाकिस्तान ने भी इसमें दखूल हासिल किया, वो हमने अपने कश्मीर का मुकदमा भी उनके कदमों में रख दिया कि ये कश्मीर का मुकदमा है और हमें उम्मीद है क्या आप हल कर लेंगे। वरना अगर हम सीज़ फायर नहीं करते तो अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं, हैट्स ऑफ टू देम, जो आज़ादी की जंगें लड़ रहे थे, हैट्स ऑफ टू देम, पाकिस्तान के फौजी, हैट्स ऑफ टू देम, कि ये आज़ाद करा लेते, ये आज़ाद करा लेते। हमने कहा कि नहीं, इंटरनेशनली चलो सही फैसला हो जाएगा, उसूलों पर फैसला हो जाएगा। मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर 70 साल की तारीख दूं, कि सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट वर्क। आचेह का मसला हल हो सकता है, इथियोपिया का मसला हल हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ बायस अगेंस्ट एंड प्रो रिलीजन्स, मगर कश्मीर का नहीं हुआ। पहली मर्तबा ये कैफियत हुई, हाथ पर हाथ धरे रहे जब बोस्निया के अंदर क़िताल हो रहा था, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये पहली मर्तबा है कि यूक्रेन के अंदर जंग जो है वो यूरोप में हुई,
तो लिहाजा ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। यूक्रेन के अंदर भी मासूम मारे जाएं तो मुझे और आपको अफसोस है, क्योंकि मेरा कुरान और मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक इंसान अगर मारा जाए तो इंसानियत मारी गई, और एक इंसान की जान बचा ली तो इंसानियत को बचा लिया। तो वी आर द पीपल जो हु टॉक अबाउट इंसान इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। लिहाजा हमें तो हर जगह का गम है। मगर ये तो बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है इखलाकियात, एथिक्स और मोरालिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की। और कहाँ से निकल सकता है ये भी मैं जब दुनिया में देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है, मेरा अपना तासुब भी है, मेरी